अच्छा जी, we are continuing the lesson on mean and standard deviation. आज हम सीखेंगे कि cumulative frequency table से कैसे mean निकलेगा और standard deviation निकलेगा. So let me paste a relevant question on the board. Okay, we're starting with histograms. Histogram diagrams से कैसे हम mean और standard deviation निकालेंगे. Just give me a second. Okay, so you have seen such histograms in O levels. Let's try to make a table from the given histogram. जब एक दफ़ा हमसे frequency table बन जाएगा ना, फिर तो हमें उसका mean निकालना आता है, उससे mean निकालना आता है और standard deviation निकालना आता है. So our first agenda is converting this histogram into a frequency table. Okay, so we have time in minutes on the x-axis. Time is starting from 100 and look at the first block. It starts from 100 and this would be 150 because it's exactly in between 100 and 200. So the first range is from 100 to 150. So I'm going to write time here, time in minutes, and then we start from 100 to 150. Equals to लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में. Okay, next starts from 150 and goes till ये 150 से अच्छा next जो है वो exactly 150 और 200 के बीच में मतलब कि 175 है. So 175. Then we start from 175 and go till 200. Next is 200 to 250. And next is 250 to ये जा रहा है 350 तक. So 250 till 350. Okay. So time के intervals हमने लिख लिए. We just had to copy them from the given table. Give me a second. I have to allow somebody in the class. Who is that? Okay. Acha ji. Now that we have the range of times, we need the frequency in the lower column. Okay. अब frequency कैसे आएगी? Let's look at the histogram. What do we have on the y-axis? We do not have frequencies on the y-axis. We have frequency, excuse me, densities on the y-axis. ये भी हमने O levels में पढ़ा हुआ है. एक फॉर्मूला होता है जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है या फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में कन्वर्ट करता है. किसी को याद होगा? फ्रॉम O3. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला. अच्छा, वो फॉर्मूला होता था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ.
So that means अगर मुझे frequency चाहिए तो I'll do frequency density into class width. ये class width है और ये frequency density है. अच्छा, अब class width क्या होती थी? अगर मैं इधर एक class width का भी column बना लूं, so we'll have the first class width would be 50. Class width would be the difference between the upper value and the lower value. So class width हो गई 50. फिर हो गई 25. फिर से 25. Then 50 and then 100. These are the class widths for each interval. Okay, so now we will multiply each given frequency density with its class width. First column की देखते हैं, first bar की देखते हैं. Frequency density है ये y value, it's 0.2 और class width होता है ये difference जो हमने निकाल लिया, that was 50. So for the first one, we're going to do frequency is equals to 0.2 into 50, which is going to be 10. So ये frequency 10 होगा. अब next column के लिए करते हैं. Same formula, frequency is equals to frequency density, which is 1 times class width इसकी 25 हमने निकाली थी, so into 25. So this is going to be 25 as well. So यहाँ 25 लिखते हैं. Next we have the third bar. Frequency is equals to उसकी frequency density 2 है और उसकी class width 25 है तो 50. So we write a 50 here. Then we have this value here, which is 1.5 times इसकी class width थी 50. So this becomes 1.5 into 50 would be 75. And for the last one, height है इसकी exactly between 0.2 and 0.4. So that would be 0.3. So frequency density is 0.3 और last वाले की class width 100. So into 100, which gives us a 30. So we have managed to convert a histogram into a frequency table. जो अपर रो है उसमें तो सिंपली टाइम इंटरवल की रेंजेस लिखनी है ग्राफ को देख के. और जो लोअर रो है उसमें हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं यूजिंग द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, जो हम ओ लेवल्स में भी यूज़ करते थे. उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लिया. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ. यू कैन रीड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रॉम द ग्राफ. And class widths are the difference of the upper and lower time interval. इनका difference जैसे 150 minus 100 is 50, वो class width होती थी. So we have managed to change the histogram into a frequency table. Okay. So part 1 में तो खाली हमने कुछ और करना था. Table part 2 के लिए. Anyway, let me read part 1. Show that 75 people took between 200 and 250 minutes to complete the race. Okay, so between 200 to 250 का मतलब है इस वाले की बात हो रही है.
तो बस इस पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के दिखाना है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इंटू क्लास विड्थ. इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 1.5 और इसकी क्लास विड्थ थी, सेकेंड लास्ट की क्लास विड्थ 50. सो इज इक्वल्स टू 75. बस ये शो करना था. In part 2, they're asking for the mean and standard deviation. So we would need the table first, जो हमने कर लिया है. अब इससे mean और standard deviation हमें निकालना आता है. Let's start. Okay, we need the mid values of each of these intervals. So let me write that here. So midpoints would be 125. 150 or 175 का क्या होता है? I'm going to add them and divide it with 2. So 162.5. Then 175 plus 200 divided by 2, 187.5. फिर 225 और फिर 300. Okay, now we're going to use the mean formula first, which is summation of xf over summation of f. You'll have this formula in the formula sheet. So x is now going to be the mid value. So 125 into its frequency, which is 10, plus 162.5 into its frequency, which is 25, plus 187.5 into its frequency, which is 50, plus 225 into its frequency, which is 75, and plus 300 into its frequency, which is 30, divided by all the sum of frequencies जो question में usually mentioned होता है, या 190 people. अगर नहीं mentioned होगा तो आपको ये पूरी lower row का sum करना होगा. Okay, so we enter all of this in the calculator and I'm just writing the answer. It comes out to be 213 point something. 213.486, and then we round it off to 213. It's must to write unrounded value before you round it off. For the next part, we have to find the standard deviation. I'll write down the formula, which is given in the formula sheet. For standard deviation, we square root the variance, which is summation x squared f upon summation of f minus, इसको mean कहते हैं, जब bar लग जाती है that means mean squared. So actually this is x with the bar. So now we're going to square all of these midpoints and rewrite this fraction. Okay, so 125 squared into 10 plus 162.5 squared into 25 plus 187.5 squared into 50 plus 225 squared into 75 plus 300 squared into 30 upon 190 minus square of the mean, which is 213.486 squared. Okay. When we enter all of this in our calculator, we should get something around 446.543.
which gets rounded to 46.5. The most accurate answer would be that uses as many decimal place of the mean found earlier. So in this question, we have learned how to convert a histogram into a frequency table and then finding the mean and standard deviation as we did yesterday. अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, उसको चेंज करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में और फिर यही काम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The distances x meters traveled to school by 140 children were recorded. Just give me a second, I have to allow somebody in the class. Okay. The distances x meters traveled to school by 140 children were recorded. The results are summarized in the table below. Calculate an estimate for the mean and standard deviation. Now, if you look at this table, and if you recall what you've done in O levels, this is not a frequency table, but a cumulative frequency table. इसको हमने पहले frequency table में change करना है और फिर mean वगैरह निकलेगा. So let's start. Okay, so distances in the upper row, distances x meters, and frequency in the lower one. Okay, it says x is less than 200, so we have to write a full range. So we'll start with 0, because distances 0 se start hote hain. 0, x, 200. This is going to be the first range. Next range would be, अच्छा आप इधर equals to लगा सकते हो, दोनों के साथ भी equals to लगा दो, इस question में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, next would be 200 to 300. Ideally नहीं लगाना चाहिए, लेफ्ट वाली वैल्यूज के साथ अगर ना लगाएं तो बेहतर होगा, बट इस क्वेश्चन में टेबल बनाने के कोई मार्क्स नहीं है, उस पर फर्दर वर्किंग करने के मार्क्स हैं, सो डजंट रियली मैटर. ओके, नेक्स्ट वुड बी 300 to 500. Next would be 500 to 900. Then 900 to 120. Sorry, 1200. And then 1200 to 1600. Okay. Calculate S. Acha. Now we need frequencies in the lower row. So frequency between 0 to 200 to ye hogi 16. Okay. What is the frequency between 200 to 300? Now we can't write 46. क्योंकि जो 46 है ना, it's for less than and equals to 300, not for between 200 to 300. अगर हमने between 200 to 300 करनी है तो इन दोनों को subtract करना होगा, which gives us a 30, और हम इधर 30 लिख देंगे. Okay. अब अगर हमें 500 to 300 चाहिए तो हमें
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, which gives us a 42. 500 to 900 के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, which gives us a 34. Similarly, next would be 12 and next would be 6. We have managed to change the cumulative frequency table into a frequency table, and now we know how to find the mean using the midpoints and the frequencies and the standard deviation. जल्दी से कर लेते हैं. Okay, I'm writing the midpoints at the top. So 100, 250, 400, 500 और 900 के बीच में क्या होता है? 500 plus 900 divided by 2, 700. Then 900 plus 1200 divided by 2, 1050, and then 1400. Okay. Let's find the mean. Which is midpoint times frequency plus midpoint times frequency plus 400 times 42 plus 700 times 34 plus 1050 times 12 plus 1400 times 6 divided by total frequency is 140. This is 505. Next, we find the standard deviation. For standard deviation, we have to square all of these, square the midpoints. So 100 squared times 16 plus 250 squared times 30 plus 400 squared times 42 plus 700 squared times 34 plus 1050 squared times 12 plus 1400 squared times 6 divided by 140 minus 505 squared, and since this is standard deviation and not variance, अगर variance होता तो बस उसका formula हमने लिख लिया. Standard deviation means take a square root of all of this, which gives us 324. Before we move on to the next question, I want you guys to observe something. कि इस question में data given क्या था? Data was x, which were the distances. और जो distance होता है वो continuous data होता है, discrete data नहीं होता. डिस्क्रीट डेटा ये होता है कि लेट्स से 1 किलोमीटर, अगले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, मतलब कि बीच की कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती. दैट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंसेस. डिस्टेंसेस तो 2.23584 किलोमीटर्स भी हो सकता है. सो डिस्टेंसेस में इंटीजर वैल्यूज नहीं होती.
नॉन इंटीजर वैल्यूज भी होती हैं, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में बहुत छोटी छोटी डिविजन एग्जिस्ट करती है. सो डिस्टेंस इज अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी, नॉट अ डिस्क्रीट क्वांटिटी. अगर डिस्टेंस की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज होता तो फिर डेफिनेटली वो डिस्क्रीट डेटा होता. डिस्क्रीट डेटा को हम एक और तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ओ लेवल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ए लेवल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओ लेवल में डिस्क्रीट डेटा नहीं होता था, सारा कॉन्टिन्यूस होता था. ए लेवल में कभी कभी डिस्क्रीट के भी क्वेश्चंस आएंगे. विल टॉक अबाउट दैट इन ग्रेट डिटेल जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अलग से वर्कशीट करेंगे, विच वॉज इन चैप्टर 1, जो मैंने स्किप कराया क्योंकि आई नीड टू गिव यू प्रिंट आउट्स फॉर दैट जिस पे हमने काम करना है. सो जब हम चैप्टर 1 करेंगे और उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो इस पे दोबारा बात करेंगे. लेकिन अभी विद एवरी क्वेश्चन आई वांट यू टू एनालाइज कि जो क्वांटिटी गिवन है क्या वो डिस्क्रीट क्वांटिटी है या कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है. इस क्वेश्चन में डिस्टेंसेस थे, वो होगा कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी. सो वही ओ लेवल्स वाला हमने काम किया, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The weights x kilograms of 144 people were recorded. The results are summarized in the cumulative frequency table below. अच्छा, अब देखो वेट्स भी कॉन्टिन्यूस डेटा है, डिस्क्रीट नहीं है. क्योंकि वेट ये नहीं होता कि इसका 1 kg है अगले का 2 kg होगा, ऐसा नहीं होता. बीच में भी 1 और 2 kg के बीच में भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत छोटी छोटी डिवीजन एग्जिस्ट करती हैं. सो ये भी कॉन्टिन्यूस डेटा है. Okay, so the first thing we need to do is change this cumulative frequency table into a simple frequency table. So let's start. So we'll start from 0 to 40 weight or frequency. So 0 till 40. Next would be 40 till 50. Next would be 50 till 60, then 60 to 65, then 65 to 70, and then 70 to 90. Zero to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, and 70 to 90. Okay. Acha ji. Now we're going to write the frequencies underneath. So this would be the same as this. Then we'll start subtracting. 12 minus 0 is 12. 34 minus 12 would be 22. Then we'll have 30. Then we'll have 28. And for the last one, we'll have, subtract these two, 144 minus 92, 52. Okay. So we have converted the cumulative frequency table into the frequency table. अब मिड पॉइंट्स लेंगे और मीन भी निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे. So midpoints would be 20, 45, 55, 62.5, 67.5, and 80. Okay, let's start. So for mean, we'll do 20 into 0 plus 45 into 12 plus 55 into 22 plus 62.5 into 30
plus 67.5 into 28 plus 80 into 52 divided by total frequency, which is 144. 20 into 0, 45 into 12, 55 into 22, 62.5 into 30, 67.5 into 28 and 80 into 52 looks good. अच्छा जी, इसका आंसर आएगा 67.2 kgs is the mean. Okay, standard deviation would be square the mid values. So 20 squared into 0 plus 45 squared into 12 plus 55 squared into 22 plus 62.5 squared into 30 plus 67.5 squared into 28 plus 80 squared into 52 divided by 144 minus mean squared and square root all of this, which gives us 11.3 after rounding. That's the standard deviation. So next is question 10. Okay. Achha. Helen measures the lengths of 150 fish of a certain species in a large pond. Again, length है, तो length तो continuous data होती है, क्योंकि ये integer values नहीं होती lengths. दो integers के बीच में like 2 centimeters और 3 centimeters के बीच में भी बहुत सारी lengths exist करती हैं. So Helen measures the lengths of 150 fish of a certain species in the large pond. The lengths correct to the nearest centimeters are summarized in the following table. Find an estimate of the mean. अच्छा, अब इस टेबल के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस डेटा. देखो 0 से 9 है और फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 से 14 तक जा रहा है और फिर 15 से स्टार्ट हो रहा है. तो व्हाट अबाउट दोज फिश जिसकी वैल्यू लेट्स से 9.5 है, उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? तो पहले तो इस टेबल को फिक्स करना है. अच्छा, अब ये टेबल कैसे फिक्स होगा? हमारे ना टेबल में गैप्स नहीं होने चाहिए. अगर गैप्स होंगे ना हम वर्किंग कर सकते हैं, ना हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं. अगर हमें कहेंगे भी, हम चैप्टर 1 में भी देखेंगे, ऐसे डेटा के साथ हम फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते जब तक हम ये गैप ना फिल करें. 9 और 10 के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 14 और 15 के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 19 और 20 के गैप के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. ये डिसकॉन्टिन्यूस डेटा है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस डेटा बनाना है. तो पहला काम ये है, टास्क 1 इज change this discontinuous data into continuous data. और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. तो हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है? इसका मैंने गैप खत्म करना है. तो मैं 9 को 0.5 आगे ले आऊंगी और 10 को 0.5 पीछे ले जाऊंगी. ठीक है, सो आई विल गेट 9.5 हेयर और ये भी 9.5 बन जाएगा.
ठीक है, 9 को हम 0.5 आगे ले गए, 10 को हम 0.5 पीछे ले गए, तो 9.5 बन गया। फिर ये बनेगा 14.5 और ये भी बन जाएगा 14.5। यहाँ पे 19.5, ये भी बन जाएगा 19.5 और लास्ट वाला हो जाएगा 30.5। जीरो को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि -0.5 लेंथ डज नॉट मेक सेंस। जीरो विल स्टे द सेम, बाकी सब राइट वाले 0.5 बढ़ जाएंगे, लेफ्ट वाले 0.5 कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लग गई है और गैप्स खत्म हो गए। अब हम अपना काम वही करेंगे जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए करते थे, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज चाहिए। ओके, मिड पॉइंट लिख लेते हैं सबके। 0 और 9.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 4.75। तो 4.75 फिर 9.5 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाय 2, 12। बाय द वे, बाकियों का मिड पॉइंट आप लोग ओरिजिनल डेटा से भी निकाल सकते हो। 10 और 14 की भी वही मिड वैल्यू होगी जो 9.5 और 14.5 की होगी, क्योंकि हमने एक साइड से 0.5 पीछे किया है, दूसरी साइड से 0.5 आगे किया है, तो मिडिल वैल्यू नहीं चेंज होगी। सो चाहो तो 10 और 12 से डायरेक्टली मिड पॉइंट निकाल लो। ओके, अगले में मैं अगर 15 और 19 से निकाल रही हूँ तो 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, आई एम गेटिंग 17, and then 20 plus 30 divided by 2, I'm getting 25. Okay. Now let's start finding the mean. 4.75 into 15 plus 12 into 48 plus 17 into 66 plus 25 into 21 divided by 150, which gives us 15.295. These are in centimeters. So mean is 15.25 centimeters. Next is calculate an estimate for the variance. अब वेरिएंस पूछी है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछी। दैट मीन्स हमने वही काम करना है बट स्क्वायर रूट नहीं लगाना। सो वेरिएंस जो होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर्ड, तो इसीलिए वो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है उसको हमने खत्म कर देना होता है। So we will just do 4.75 squared into 15 plus 12 squared into 48 plus 17 squared into 66 plus 25 squared into 21 divided by 150 minus mean squared, which is 15.295 squared. We will not be square rooting this. This gives us 29.059, which rounds to 29.1.
Next question. The number of chocolate bars sold per day in a cinema over a period of 100 days are summarized in the table below. अच्छा, अब number of chocolate bars, is this going to be continuous data or discrete data? Discrete. Yes, exactly, discrete. ठीक है, हर क्वेश्चन में ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस पे नज़र रखो कि कॉन्टिन्यूस डेटा है कि डिस्क्रीट डेटा. Okay, sold per day in cinema over a period of 100 days are summarized in the table below. अब पहला तो टेबल में मसला ये है कि इस पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन निकालनी है, लगानी है. ठीक है, हमने कोई भी वर्किंग करनी हो हमें कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए होता है. ठीक है, 10 और 11 को भी हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसके ना बाकी पार्ट्स में वो मे बी कहें इससे हिस्टोग्राम बनाओ या इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि डेटा कनेक्टेड हो, वो कॉन्टिन्यूस हो, गैप्स नहीं हो सकते डेटा में. ठीक है, तो अब हम इनके गैप्स फिल करते हैं. तो वील राइट 10.5 एंड 10.5 है, एक साइड से 0.5 आगे करेंगे, एक साइड से 0.5 कम करेंगे. अच्छा, एक सेकेंड, पार्ट ए में तो उन्होंने कुछ और पूछा है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा. पहले ये करते हैं. इंटरक्वार्टाइल रेंज होती क्या है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. अब इसमें हमारे पास अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास एक पूरी रेंज आएगी. ठीक है, तो लेट्स सी अपर क्वार्टाइल किस रेंज में लाया करता है और लोअर क्वार्टाइल किस रेंज में लाया करता है. अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से याद हो ओ लेवल्स की, अपर क्वार्टाइल के लिए ना हम यहाँ 75% पे लाइन लगाते थे और ये हमारा अपर क्वार्टाइल होता था, और लोअर क्वार्टाइल के लिए यहाँ 25% पे वैल्यू फाइंड करते थे और ये लोअर क्वार्टाइल होता था. सो इफ वी हैव 100 वैल्यूज तो अपर क्वार्टाइल जो होगा वो 75th वैल्यू है, 75th वैल्यू, और लोअर क्वार्टाइल जो है वो 25th वैल्यू है. अब हम अपने टेबल पे जाके देखेंगे कि 75th वैल्यू की रेंज क्या है. लेकिन चॉकलेट बार्स तो सिर्फ 60 तक जा रही है. नंबर ऑफ डेज तो 100 है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती थी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का 75% और फ्रीक्वेंसी का 25%. ठीक है, तो ये जो हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो 75th डे पे कितनी चॉकलेट सेल हुई हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में खाली 18 वैल्यूज है, उसमें प्लस 26 करते हैं तो 42 बनता है, 75 नहीं आया अभी. प्लस 30 करते हैं तो 72 बनता है. दैट मीन्स 75 इधर है. जो 75th डे है ना वो इधर लाया कर रहा है. सो 31 से 50 के बीच में कहीं अपर क्वार्टाइल है. लोअर क्वार्टाइल है 20 क्या नाम है 25th वैल्यू पे. सो 25th वैल्यू तो इधर कहीं लाया करेगी. सो लोअर क्वार्टाइल हमारा 11 से 15 तक है. ओके, सो अब हम करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड, बट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हम 50 और 11 माइनस कर देंगे. सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरक्वार्टाइल रेंज वुड बी दिस 39. Okay. For the next part, we have to find the mean and standard deviation. उसके लिए इसको connect करते हैं पहले डेटा को. Okay. So 10 बन जाएगा 10.5, ये भी बन जाएगा 10.5, 15.5
वैसे इसमें हमें खाली मिड पॉइंट चाहिए, लेकिन फिर भी आई विल इनकरेज यू कि हम इसको कनेक्ट कर लें, क्योंकि खाली यही क्वेश्चन नहीं आता, इस पे और वर्किंग भी कराते हैं, फिर उसमें मसला होगा। और यहाँ पे कर देंगे 0.5। अब क्योंकि ये 1 था इधर, तो 1 में से तो हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, now we already have the frequencies 18, 24, 30, 20 and 8. अब इसका मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो हमें मिड वैल्यूज चाहिए। मिड वैल्यू ना बस फर्स्ट की ध्यान से निकालनी है। फर्स्ट वाले की क्या होगी, 0.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इट्स गोइंग टू बी 5.5। बल्कि इसकी भी वही रहेगी जो ओरिजिनल डेटा है, क्योंकि अगेन राइट साइड को 0.5 आगे कर दिया, लेफ्ट साइड को 0.5 पीछे कर दिया, और सबके लिए किया ये। सो जो 1 और 10 की मिडिल वैल्यू है वही 0.5 और 10.5 की मिडिल वैल्यू होगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज ओरिजिनल वैल्यूज टू फाइंड द मिड वैल्यूज। इसकी हो गई 13, फिर 16 और 30 के मिडिल में है 23, फिर 31 और 50 के मिडिल में है 31 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 40.5, और फिर 51 और 60 के मिडिल में है 55.5। ओके, लाइक आई सेड बिफोर, इस क्वेश्चन में अगर हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ना भी लगाते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमें खाली मिड पॉइंट्स चाहिए, और क्योंकि फर्स्ट वैल्यू भी 1 जो है वो 0.5 पीछे जा रही है और 10.5 आगे जा रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिड पॉइंट को। लेकिन पिछले क्वेश्चन में पड़ता था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने 0 को 0 ही रखा था। सो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। बट इफ़ इन पार्ट सी दे टेल यू टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल और द हिस्टोग्राम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई हुई हो। Okay, so let's quickly find the mean and standard deviation. So 5.5 into 18 plus 13 into 24 plus 23 into 30 plus 40.5 into 20 plus 55.5 into 8 divided by 100, which gives 23.55. And now we find the standard deviation. So you square the data values. 5.5 squared into 18 plus 13 squared into 24 plus 23 squared into 30 plus 40.5 squared into 20 plus 55.5 squared into 8 divided by 100 minus square of mean and standard deviation पूछा है तो या square root everything. This gives 15.0. Okay. इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 12, जो कि होमवर्क में होगा। वो थोड़ा डिफरेंट है, डिस्क्रीट डेटा है, सो मेक श्योर उसको अटेम्प्ट करो, और अगर नहीं समझ आएगा तो आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन इट एज वेल. प्लीज स्टे बैक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन लीव. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़.